KVL in the chapter of current electricity. I hope so. देखो ये क्वेश्चन ऐसे है कि there is a cell like this and this cell is having a voltage of 12 volt and then we have a capacitor this way, then again we have a cell, है ना, यहाँ पर एक फिर से सेल आ गया, ऐसे सेल आ गया, और उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, वी हैव वन मोर कैपेसिटर है, ठीक है. The values of these are given. This point is A, this point is B. The capacitors are of capacitances 2 microfarad and 4 microfarad. And the last cell is having a voltage of 24 volts. तो अब आपसे कहता क्या है इस क्वेश्चन में? They are asking you to find the potential difference between the points A and B of the arrangement shown in the figure. मतलब ये जो अरेंजमेंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, राइट? अब कैसे करेंगे सर? इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे? तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले तो आप ये फाइंड कर लो कि व्हाट वुड बी द चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट. ठीक है, इफ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग इनटू द सर्किट यू कैन बी एबल टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी कैपेसिटर इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस. ठीक है, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो सुने. If I know the charge of a capacitor, let's say the charge is Q, and I know the capacitance of this capacitor, so the potential difference of this capacitor can be simply written as equal to Q by C. Right, bete? Yes. Bolo? So if I can anyway find the value of the potential difference, if I can find the value of the charge, so I'll be able to find the value of potential difference. ठीक है, अगर मैं चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ विल यू कैलकुलेट द चार्ज? तो इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट. मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ कि इफ देयर इज अ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, ये अगर कोई भी चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा तो विल इट डिवाइड और द सेम चार्ज विल फ्लो ऑन बोथ द कैपेसिटर्स? What do you say? Same. Of course, the same charge will flow, है ना? Because charge will have only one path to flow into this circuit. So the same charge will go to the 4 microfarad as well as 2 microfarad. So can anyone tell me how these two capacitors are connected? 4 microfarad and 2 microfarad. How are they connected? Are they in series or they are in parallel? How are they? Yes? Series. Of course, they are in series. Very good. So what will be the C equivalent? C equivalent can be written as equal to, if you want to write 1 upon C equivalent, so you can write it as 1 upon C equivalent is equal to 1 by 2 plus 1 by 4. Solve it. So 1 upon C equivalent will be nothing but the LCM of the 2 will be equal to 4. This is 2 plus 1. So C equivalent is equal to 4 by 3. Am I right? Yes. C equivalent is equal to 4 by 3. देख लेना मैंने कहीं कुछ गलत नहीं किया हो. Everything is correct. ध्यान से देख लो. ठीक है? Yes. ठीक है, अब देखो C equivalent, once I have got the value of C equivalent, अब देखो ये यहाँ पर कितने सेल लगे हैं बेटा? There are two cells, right? One is of 12 volt and another one is 24 volt. यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ऐसे दो सेल लगे हुए हों, you have to remember this, right? This you will study in the chapter of current electricity, but अभी इसको सिर्फ याद रख लो कि if the two cells are connected in such a way such that एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो कि आप ये कह सकते हो कि इस वाले सेल का पॉजिटिव और इस वाले सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है. अगर कभी भी ऐसा हो कि एक ऐसे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ओनली, इसका वोल्टेज V1 हो और इसका वोल्टेज V2 हो, तो V इक्विवेलेंट या V नेट, that is the net voltage, will be written as equal to difference of these two voltage, either V1 minus of V2 or V2 minus of V1. Clear? Tell me yes or no. अगर कभी भी if you have more than one cell like this, तो you will write the net potential as V1 minus of V2. अच्छा, अगर if you have two cells like this, और ये हम पढ़ेंगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर ऐसे है such that negative of one cell is connected to the positive of another, तो net potential will be equal to V1 plus of V2.
ठीक है, बट यहाँ पर देखो एक का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ अनदर, तो ये वाला केस अप्लाई होगा। तो नेट पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, यू विल राइट द नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर, the net potential you will write the net voltage as equal to 24 minus of 12, that is equal to 12. So this is the potential, this is the C equivalent. So what will be the charge, charge will be equal to C equivalent, which is 4 by 3 multiplied by 12, that is equal to कितना हो गया बोलो, 16. Am I right? Yes, sir. Okay. तो द पोटेंशियल डिफरेंस ये जो हमें निकालना था ना इसके अक्रॉस, तो VAB दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर connected between the points A and B. So VAB will be equal to charge upon capacitance. Charge कितना है इस पे 16, capacitance इसका कितना है 2, so this will be written as equal to 8 volts in magnitude. ठीक है, did you note that? Can I erase this and can we go to the next topic? Yes, sir. या किसी और के पास कोई और डाउट, किसी और का कोई डाउट नहीं है? चलो, तो इस कैपेसिटर वाले पार्ट के हम लास्ट के टॉपिक्स पे अब डिस्कशन करेंगे, एंड दिस टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 12th एग्जाम्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है, लिखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन हम करेंगे? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले तो समझ लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड द प्रॉपर्टीज एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद फिर वी विल प्लेस द डाइलेक्ट्रिक इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन इंसुलेटर? व्हाट इज एन इंसुलेटर? हाउ विल यू डिफाइन एन इंसुलेटर? In Anyone? which charge not flow? Charges does not follow. Very good. A material in which the charges are not free to move or it is not free to flow, that is called as insulator. And remember, if you place the insulator, it will not allow the electric field to flow through it also. Neither in the charges in that insulator can get polarized. क्या मतलब? मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। Neither it has free charges which can flow inside the insulator, nor it will allow the passage of electric field through it or passage of electrical effects through it. मतलब अगर आपने इंसुलेटर रख दिया ना कहीं पर, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास नहीं हो सकते। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि whenever an electrician works, इलेक्ट्रीशियन को देखा है कभी काम करते हुए? तो whenever electrician works, it is advised to an electrician to wear a slipper made up of rubber or wear a sandal made up of rubber. आपको कोई आइडिया है? कोई इलेक्ट्रीशियन अगर वर्क करता है ना, या आप भी मान लो आप भी कोई काम कर रहे हो अगर इलेक्ट्रिक का, तो उसमें आपको एक एडवाइस है मेरा, याद रख सकते हो कि यू ट्राई टू वेयर द रबर चप्पल्स। Why is it advised? The reason is that rubber is an insulator, and when you will wear that chappal, so what will happen? The contact between the surface or the ground and between and your leg will break. मतलब आपके पांव और ग्राउंड के बीच में क्या है? रबर की चप्पल है, एक इंसुलेटर है। And because there is an insulator, it will not allow the passage of electricity or charges from your body into the ground. मतलब आपकी बॉडी से चार्ज ग्राउंड में फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब you will not become a path for the flow of the charge, and hence you will not feel any electrical shock. मगर मान लो कि if you are standing on the ground barefooted, मतलब you are not wearing nothing, ठीक है, you are not wearing the rubber chappals, so in that case you will become a path for the flow of electricity, right? Charges can flow from your body into the ground and you will become a path for the electricity, and hence you will feel an electrical shock. Did you understand or not? Yes, sir.
इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेटा उसमें चार्जेस फ्री नहीं होते टू मूव। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इट डजंट इवन अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स थ्रू इट। ना तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू पास होने देगा, ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने थ्रू पास होने देगा। इट विल डू नथिंग। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक ब्लॉकेज है जहां से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास नहीं हो सकते। बट बेटा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे भी इंसुलेटर्स हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर आल्सो इंसुलेटर्स, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी सी अलग है। इसमें भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं, बट दे अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। नहीं आई बात समझ में? मतलब ये ऐसे इंसुलेटर्स हैं इन विच देयर इज नो फ्री चार्जेस। ये इंसुलेटर क्यों है? बिकॉज इसमें फ्री चार्जेस में इसमें भी नहीं है। बट इसमें और नॉर्मल इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? तो इसमें और नॉर्मल इंसुलेटर में डिफरेंस ये है कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देता है। इट अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थ्रू इट। नहीं आई बात समझ में? तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर है? इट इज स्टिल एन इंसुलेटर। तो सर जब इंसुलेटर आपने डिफाइन कर ही दिया था, देन व्हाट वाज द नीड ऑफ डिफाइनिंग वन मोर क्वांटिटी व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक? तो बेटा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है कि इट doesn't have free charges as like insulators, but it allows the passage of electrical effects through it. इसके एग्जांपल क्या है सर? जैसे ग्लास, वैक्स, वाटर, etc. All of these are examples of insulator dielectrics. ग्लास इंसुलेटर है which doesn't have any free charges. बट अगर बेटे आप ग्लास को अगर कहीं पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप ग्लास को वहां पर प्लेस कर दो तो ग्लास के थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक एंड से दूसरे एंड पे आ जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे ग्लास के थ्रू। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये इंसुलेटर्स हैं, बट इसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास हो सकता है। तो सच ए मटेरियल इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा सिंपल सी बात ये हो गई कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? these are insulators, these are insulators through which electrical effects can pass। नॉर्मल सी बात आपस में समझने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल है वैक्स, ग्लास, वाटर, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर डाइलेक्ट्रिक। ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखो बच्चे, जब आप ये सब कुछ डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? प्लीज एक बार जल्दी से बोल दो। डेफिनेशन क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड। तो आप डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्लियर है, तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बेसिकली आपको कुछ बातें समझनी। देखो बेटा होता क्या है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक हमें ऑब्जर्व हुए जिसमें कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं था। इन केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि वाटर हैज इट्स डाइपोल मोमेंट। आपने सुना है H2O का डाइपोल मोमेंट होता है, HCl डाइपोल मोमेंट होता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट इन द चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपने शायद ये पढ़ा होगा। ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। वो क्यों होता है बेटा? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर देखो H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस, दीज आर टू डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो हमें मालूम है कि द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स अ डाइपोल। उसी अरेंजमेंट का नाम डाइपोल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इट हैज पॉजिटिव चार्ज सेंटर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज सेंटर, एंड इफ दीज टू चार्ज सेंटर्स आर सेपरेटेड by a small distance in the material, then that individual molecule will said to have a dipole moment। समझ में आई बात? बट बेटा होता यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट तो करते हैं, बट इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि दोनों के जो सेंटर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इनफैक्ट दे ओवरलैप्स ऑन वन अनदर। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड करता है।
ठीक है, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर किसके साथ कोइंसाइड कर जाता है, नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ, सच दैट उस केस में जो आपका वो 2a की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है बेटे, उसको हमने अकॉर्डिंग टू दिस वी डिवाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू 2 टाइप्स. One is called as polar dielectric and another one is called as non-polar dielectric, and you need to understand everything. Polar dielectric or non-polar dielectric, there are 2 types of dielectric materials. One is called as polar dielectric और दूसरे को हम क्या कहते हैं, non-polar dielectric. क्लियर है? इसके एग्जांपल्स बता देता हूं कि what are the examples of non-polar and what is the example of polar. जैसे फॉर एग्जांपल HCl आपने पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, इसका डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है, CH3OH, ये क्या होता है CH3OH? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस CH3OH? क्या है ये? एल्डिहाइड, अल्कोहल. अल्कोहल. ठीक है, ओके. और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, दीज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, अब फिर से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला पोलर और नॉन पोलर के बारे में. ऐसे डाइलेक्ट्रिक, ऐसा कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होगा. फॉर एग्जांपल HCl के हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, इट हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना. और इस नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल has dipole moment. Individual molecule doesn't have dipole moment. Individual molecule का कोई dipole moment नहीं होता. It doesn't have any dipole moment. It does not possess any dipole moment. ठीक है, बट बेटा अब दूसरी बात सुनना बहुत ध्यान से. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है इसमें और इसमें नहीं है. तो इसका मतलब है कि इस पूरे का, इस मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं है. तो नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 होगा. मतलब इंडिविजुअल का 0 है तो पूरे मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा. पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है, मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है, बट होता यह है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर आप ये कह सकते हो कि इसके जो इंडिविजुअल डाइपोल है, मान लो ये एक डाइपोल है एक मॉलिक्यूल का, तो ये इस डायरेक्शन में है. दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ऐसे मान लो कि वो इस डायरेक्शन में है, तीसरे का मान लो कि इस डायरेक्शन में है, चौथे का इस डायरेक्शन में है ना. इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करता है, बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, है ना. मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर्स दीज molecule, the dipole moment of these molecules are randomly oriented. वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा ना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होते हैं एंड दे ऑलवेज मूव इनसाइड द कंडक्टर. बट बेटा एक बात बताओ कि विदाउट कनेक्टिंग द कंडक्टर विद द सेल, क्या कोई करंट फ्लो करता है कंडक्टर में? अगर आप कोई सेल कनेक्ट नहीं करोगे कंडक्टर के अक्रॉस तो क्या कोई करंट मिलता है? No, ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि करंट ऑलवेज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज इनसाइड द कंडक्टर, बट विदाउट कनेक्टिंग अ सेल यू विल नॉट गेट एनी करंट. ठीक है, उसका रीजन क्या है? कि उसका रीजन ये है कि विदाउट एनी सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड ड्यू टू व्हिच ईच इलेक्ट्रॉन कैंसल्स आउट अदर मोशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होता है. बट व्हेन यू कनेक्ट अ सेल, तो व्हाट हैपेंस, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड कंडक्टर पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो करता है, राइट. ठीक है, बट ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं पूछूं तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग इनसाइड द कंडक्टर. सिमिलरली
ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, बट इसकी डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड है। एंड ड्यू टू दिस रैंडम ओरिएंटेशन व्हाट हैपेंस कि एक का डाइपोल मोमेंट दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है। देखो इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है और इक्वल है बिकॉज मॉलिक्यूल सेम है। अगर ये Cl का मॉलिक्यूल है तो सारे HCl के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सेम होगा, तो इसका मतलब है कि दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। सिमिलरली इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है, तो अल्टीमेटली बेटा इसमें भी क्या होगा, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट हमें नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे 0 मिलेगा। नहीं यही बात समझ में, यहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वेदर यू हैव अ पोलर डाइलेक्ट्रिक or a non-polar dielectric, in the case of both the net dipole moment will always be equal to 0. The only difference is polar dielectric में individual dipole moment है, non-polar dielectric में कोई individual dipole moment भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ूं बेटा? Any doubt which you want to ask? Okay, good. अब सुनो, अब इसके बिहेवियर पे आते हैं। How does this dielectric behaves when they are kept in an external field? तो अब इसके लिए आप ऐसे समझो बच्चे कि मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इट कैन बी आइदर पोलर और नॉन पोलर, डजंट मैटर, दोनों का जो बिहेवियर होगा इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड वो सेम होगा। आई विल रिपीट इट अगेन कि डजंट मैटर वेदर यू हैव अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, द बिहेवियर ऑफ बोथ विल बी सेम इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड। तो मान लो कि ये एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, और ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब एक बात तो ऑब्वियस है ना बेटा कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर मैं कह रहा हूं ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, मान लो कि मैं आपसे कहूं कि इट्स अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है एंड ऑल ऑफ देम आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो अब जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस डाइपोल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे फोर्स लगेगा। आप इमेजिन करो ना कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और मैंने इसके अंदर कोई किसी डाइपोल को रख दिया, ये एक नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो आपने पढ़ा है ये पहले भी कि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and negative charge will experience the force in the opposite direction of electric field, and due to which this will rotate till the direction of dipole moment aligns itself in the direction of external field. right है? yes, सही बोल रहा हूं? तो वैसे ही जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर जो चार्जेस है ना, नेगेटिव चार्जेस, उस पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भगाएगा और पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका एक डाइपोल ऐसे अरेंज हो गया, दूसरा डाइपोल इफ देयर इज द सेकंड डाइपोल तो इट विल अरेंज लाइक दिस, ये डाइपोल, मतलब ये सारे डाइपोल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे सच दैट कि सारे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो सारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे अलाइन हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स और इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स विल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो। yes, अब देखो एक बात समझो, मुझे एक बात बताओ, इसमें भी डाइपोल, मान लो इसका डाइपोल मोमेंट P है और इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर। बेटे मुझे एक बात बताना, मैं आपसे कहूं ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने इस तरह से फोर्सेस लगाए, ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, मान लो ये 30 न्यूटन, ऐसे मैंने फोर्स लगाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई कैन रिप्लेस ऑल दीज फोर्सेस बाय अ सिंगल फोर्स which will have a value of 60 Newton? Am I right? yes, sir. ठीक है। Similarly, ये सारे जो डाइपोल आपको दिखाई दे रहे हैं, all of them are same and they are in the same direction. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि all of these dipole can be replaced by a single dipole? नहीं yes, आया। sir. Similarly, यहाँ के भी डाइपोल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं by a single dipole। अरे इरेज मत हो, हर रो के हम डाइपोल मोमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल डाइपोल। एक तो मेथड ये है सोचने का, वन ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस इज दिस कि आप सारे डाइपोल को रिप्लेस कर रहे हो बाय सिंगल डाइपोल्स। दूसरा तरीका इसी चीज को सोचने का ऐसे भी है जो आपके बुक्स में भी लिखा होता है कि आप इस बात को ऐसे सोचो, आप यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, देखो 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 बेटा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव,
क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. बिकॉज जितना पॉजिटिव है उतना ही वैल्यू निगेटिव की भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप देखें तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। होता यह है कि एक्सेप्ट द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये जो सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे जो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्जेस यहां पर बच जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और बाकी चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो। इसका मतलब Yes, सर sir. होगा क्या, इसके बाद का पॉइंट क्या होगा? होगा ये कि आफ्टर यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, there will be charges only at the two surfaces of the dielectric. There will be negative charges opposite to the external field and positive charges in the direction of electric field, and they will arrange on the two surfaces. ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि this surface is having a charge density of say minus sigma, I मैंने लिखा है induce, और यहां पर चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा, आई स्टैंड्स फॉर इंड्यूस। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, whether it be a polar dielectric or a non-polar dielectric, any of the dielectric, if it is placed inside an external field, अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में से कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक हो, अगर आप उसको इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करोगे, इफ यू प्लेस द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता यह है कि बेटा उसके सरफेस जो है ना, उसके सरफेस पे, उसके दोनों सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। At one surface you have negative charges induced, and on the another surface you have the positive value of charges that induces. Clear हो गई बात यहां तक? Tell me yes or no. Yes, sir. So this is the behavior, and hence you will get an electric field inside the material, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल किधर होगी? तो दैट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑब्वियसली ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब बेटा किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट आई कैन क्लेम दैट कि देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वन इज एक्सटर्नल फील्ड एंड अनदर वन इज इंटरनल फील्ड। इज इट क्लियर? तो किसी भी इंस्टेंट पे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू E माइनस ऑफ EI। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो। नहीं आई बात समझ में? किसी भी टाइम पे द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस टू फील्ड्स। अग्रीड और नॉट? ये ऐसा हो गया ना कि अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि इधर से मैंने एक फोर्स लगाया F1 और इधर से एक फोर्स लगाया F2, तो नेट फोर्स कितना होगा? द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी टाइम पे हम नेट फील्ड अगर लिखें इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड द इंटरनल फील्ड। ठीक है, तो नेट फील्ड इज E माइनस ऑफ I। क्लियर है? अब एक बात मुझे समझाओ कि when there was no dielectric material placed, तो उस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड was E, but the moment you placed a dielectric material in a region, in that region electric field reduced or not? Tell me. Yes. सब नहीं बोल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। When there was no dielectric material, the value of the field at every point was same. When you will place a dielectric material, the region in which the dielectric material is placed, in that region the net electric field reduces or not? Yes, sir. Of course it get reduced, right? इसका मतलब बेटा जब भी हम किसी भी रीजन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में डिक्रीज हो जाती है। यहां पर एक डिफरेंस समझो, डिफरेंस। अगर हमने कंडक्टर रखा होता तो क्या होता? What would happen to the electric field in the region where the conductor is placed? Who will tell me? Zero. अगर इंस्टेड मैंने कोई, हाँ बोलो बोलो, जीरो हो जाती है ना। मतलब if you place a conductor, then in that region in which you have placed a conductor, net field will become zero. But if you place a dielectric material, the net field will decrease but will not become equal to zero. बात समझ में आ गई? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है बट वो जीरो नहीं कर सकता। ठीक है, बट कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है? जीरो। और ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको वो रीजन बताता हूं। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि whenever a dielectric material is kept inside an external field, the net electric field inside the dielectric material gets reduced,
and it is written as the difference of external field and the field inside the material which is induced, ठीक है, और net field is E minus of EI। इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं इसमें रेशियो लूं, है ना, जो नेट फील्ड है डिवाइडेड बाय द रेड्यूस्ड फील्ड, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड, ये जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया था, ये एक्सटर्नल अप्लाई किया था, और हमें मिला क्या, वो मिला ई नेट। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन व्हिच इज कॉल्ड एज कप्पा, एंड दिस कप्पा स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कप्पा क्या चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। नहीं आया, टेल मी यस और नो। इसका मतलब है कि कप्पा is what it is the ratio of external field to the net field inside the dielectric। या तो आप ऐसे लिख लो इसको, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कप्पा which is the dielectric constant of the material can be written as external field, external field मान लो कुछ भी है E, divided by net field inside the material, that is E minus of EI। Did you understand or not? Tell me yes or no। This is called as dielectric constant of a material। समझ में आई बात? को किसी भी मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितना रिड्यूस होगी, इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। नहीं आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? 0.85। अरे नहीं, no beta, this k is not the same k which we have already studied, don't get confused। वो जो हमने पढ़ा था जिसका वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होता था, that was also represented by k, उसको हम 1/4 pi epsilon naught कहते हैं, that is called as electrostatic constant। ठीक है, वहां पर that was called as electrostatic constant, ठीक है, proportionality constant था वो। यहां पर जो ये कप्पा है ना, कप्पा जो k जैसा दिख रहा है, this is not that electrostatic constant, rather it is the ratio of the external field to the net field inside a material। is it clear? अब आपने मुझे बोला कि फॉर कंडक्टर, अब मेरी बात सुनिएगा, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर में क्या बोला आपने? कंडक्टर में बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? 0। अग्रीड? टेल मी यस और नो। बोलो। Yes, इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखूं, आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, बट जो नेट फील्ड होगी दैट विल बिकम इक्वल टू 0, राइट? तो कप्पा की वैल्यू अगर आप देखें कंडक्टर के लिए तो इट इज इनफाइनाइट और नॉट? Yes sir। इसका मतलब समझे कि किसी भी कंडक्टर के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, किसी भी कंडक्टर के लिए। इफ इट इज अ कंडक्टर, डजंट मैटर कि वो आयरन है, कि वो गोल्ड है, कि वो सिल्वर है, as long as it is a conductor, the value of dielectric constant will be infinite for that। but for a dielectric material, the value of dielectric constant will always be less than infinity, of course, and for different dielectric the value of dielectric constant will be different। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट कंडक्टर के केस की अगर मैं बात करूं तो फॉर एवरी कंडक्टर which is available in the universe, सारे कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। Is it done? yes sir। Okay, so I'll be erasing this because I have to talk about few more relation and definitions. So I am erasing everything whatever written on the screen to tell you about other definitions or other small quantities which is important to remember। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैंने आपसे ये बोला कि whenever you will place a dielectric in a region of electric field, the net field inside the dielectric will reduce, ठीक है, it will decrease, right? अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखो तो मैंने आपसे साथ साथ ये भी बोला है कि डाइलेक्ट्रिक के दो सरफेसेस पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? Yes sir। बोल, है ना? इसको इंड्यूस चार्ज भी कह सकते हो आप, या पोलराइज्ड भी कह सकते हो, है ना? चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन भी कह सकते हो, और यू कैन क्लेम दिस चार्ज टू बी इंड्यूस्ड। पोलराइज्ड बोले या इंड्यूस्ड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
बोथ आर द सेम थिंग, राइट? हियर बोथ आर द सेम थिंग। इंड्यूस कह लूं या पोलराइज कह लूं, दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मेरी बात बताओ कि सर इस चार्ज डेंसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस चार्ज डेंसिटी विच इज इंड्यूस चार्ज, कैन आई राइट दिस एज टोटल चार्ज इंड्यूस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस सरफेस? टेल मी यस और नो। where A is surface area of dielectric। आपको नहीं समझ आया? A क्या चीज है? सरफेस एरिया है। याद करो ना, सिग्मा क्या होता था? चार्ज डेंसिटी। कैसा चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया ही को तो सिग्मा कहते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, तो अगर मैं इतना चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज, तो ये अगर इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस ऑफ क्यू आई, तो इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ प्लस ऑफ क्यू आई, तो अगर मान लो कि द लेंथ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज डी, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज डी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ होगा, डाइपोल मोमेंट मतलब आप इसको ऐसे दो चार्ज की तरह ट्रीट कर लो, जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको दो चार्ज की तरह ट्रीट कर लो, इसको माइनस ऑफ क्यू आई और ये प्लस ऑफ क्यू आई, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज इंड्यूस्ड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डी? टेल मी यस और नो। Yes, sir. दिस इज द डाइपोल मोमेंट, राइट? बट दिस इज द डाइपोल मोमेंट, बट ये डाइपोल मोमेंट किसी एक पॉइंट पे तो नहीं है, दिस विल बी ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब इमेजिन करो कि अगर ये दो चार्जेस हैं, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डू वी हैव ओनली टू चार्जेस और वी हैव plenty of charges on the two surfaces? Plenty of charge. We have plenty of charges, we have many number of charges. For example, this is also one induced pair of charge of negative and positive, this is also one induced pair of charge of negative and positive. So because in the whole of the volume of dielectric you will be getting this induced charges, hence the better thing which should be defined here, instead of defining dipole moment, we should define dipole moment density in this case, right? क्यों डाइपोल मोमेंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे सर? क्योंकि बेटा डाइपोल मोमेंट किसी एक पॉइंट पे नहीं है और किसी एक पेयर ऑफ चार्ज का नहीं है, दैट इज ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो इट इज बेटर टू डिफाइन द डेंसिटी। और यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसको जो भी कहना है कह लो, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, इसका दूसरा मतलब आप याद रख सकते हो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। याद रखने के लिए आप इस बात को याद रख लो, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। डाइपोल मोमेंट डेंसिटी का क्या मतलब है सर, या पोलराइजेशन डेंसिटी का क्या मतलब है, या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी का क्या मतलब है? तो डेंसिटी का मतलब आपको पता है ना, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंड्यूस मतलब ऐसे लिख लो, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का? एरिया ऑफ द सरफेस इज ए एंड द लेंथ इज डी, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम। और P को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर P को हम लिख सकते हैं QI मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय व्हाट? तो डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय D। कैन वी राइट दैट और नॉट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Of course this D and this D cancels out, so what we will get from here, we'll get from here as QI divided by A, or QI divided by A was what? This was equal to the Sigma. charge density, sigma, right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि polarization density for a dielectric material, polarization density for a dielectric material is always equal to the surface charge density induced on the material। मतलब जो उसके सरफेस पे जितना चार्ज चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो रहा है, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द पोलराइजेशन डेंसिटी। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड द पोलराइजेशन डेंसिटी, दे आर ऑलवेज इक्वल फॉर अ डाइलेक्ट्रिक। डन? Yes, sir. No, sir. ओके, अच्छा लिख लो। तो मैं एक और टर्म डिफाइन करूं यहां पर। Done, sir. ओके गुड। अब एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एक और टर्म, ये सब छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जाम, तो इसलिए ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इस बात को समझो। देखो बेटे, होता क्या है कि whenever we place a dielectric material, इस बात को पहले तो सुन लो कि whenever we place a dielectric material in an external field, तो हमने ये देखा कि उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। अभी ये तो बात करी है हमने कि whenever you will place a dielectric material inside, because जब तक आपने उसको डाइलेक्ट्रिक को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। डजंट मैटर कि वो डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर है, both has the net dipole moment equal to zero in the absence of any external field. उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस तब होता है when you place a dielectric material inside the field. तो ये देखा गया है बेटा कि more is the value or more is the strength of external field in which the dielectric is kept, more is the dipole moment induced inside the dielectric. फिर से मेरी बात सुनो कि ये जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा या हुआ, वो हमने ऑब्जर्व किया कि इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा थी, हमने ये ऑब्जर्व किया कि उतना ज्यादा उस मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। एंड लेस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, लेस वाज द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल। तो हम एक सिंपल सी बात प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड, राइट है। अच्छा, एक बात ये भी याद रख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी कैन इवन राइट द वेक्टर साइन आल्सो। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वी विल हैव टू यूज सम कांस्टेंट और नॉट? Yes, sir. Yes sir. So here we basically use two constant. One you have already seen, which is called as epsilon naught, and the another constant is represented by this sign. What this sign is called as? ये जो x Chi. जैसा साइन है उसको हम क्या कहते हैं? Chi. ठीक है, this chi है ना, ये जो chi है आपका, this chi is basically called as electric susceptibility. ये जो chi है, this is called as electric susceptibility. तो सर electric susceptibility define कैसे होगी? It will be defined as P divided by epsilon naught times of electric field. अब क्या definition होगी सर इसकी? इसको हम define कर सकते हैं कि the dipole moment induced in a material per unit electric field applied across the material is basically called as its electric susceptibility. Is it clear or not? Tell me. ये बेसिकली किस चीज का रिलेशन है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नहीं आया भाई, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज बेसिकली नथिंग बट रेशियो। किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन एंड epsilon naught times the electric field, या पोलराइजिंग फील्ड भी कह सकते हो आप, वो फील्ड जो इसको पोलराइज कर रही है। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. सबको समझ आ गया? अब इसमें एक और छोटा सा रिलेशन है विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? एवरीवन, सबको याद आ गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? हाउ डू वी डिफाइन दिस? Okay, good. Now there is one more thing which you will remember, and in the next class we will complete this chapter of capacitors. ठीक है, उसके बाद हम आगे के चैप्टर पे चलेंगे। यहाँ पर एक और टर्म, एक और छोटा सा डेफिनेशन है, वो याद रखिएगा। डेफिनेशन क्या? इट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। वन इज दिस कप्पा। क्या है ये कप्पा? कप्पा क्या है बेटा? कप का बड़ा फॉर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये दूसरा है काई विच इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का हम रिलेशन फाइंड करेंगे। देखो कैसे। बच्चे, हमें एक बात पता है कि आपकी जो नेट फील्ड होती है, ई नेट इनसाइड द मटेरियल, उसको आप लिखते हो ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड। यही लिखा था ना आपने? नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो होगी वो एक्सटर्नल फील्ड माइनस ऑफ इंटरनल फील्ड, इसी का तो डिफरेंस होगा। नहीं Yes, आया? sir. Yes. अब मुझे एक चीज और ये बताओ बेटा कि अगर इफ आई हैव अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड आई हैव अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और मैं आपसे कहूं कि इस पर सिग्मा आई इज द चार्ज और इस पर सिग्मा आई इज द चार्ज, तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स in terms of sigma? What will be the net field in between the two plates? Sigma by epsilon naught.
Very good. We have already seen this in the case of capacitor. When we derive the result of capacitance for a parallel plate capacitor, we have already seen this result, right? कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो नेट फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. If there is only one plate, the electric field will be sigma upon 2 epsilon naught. If there are two plates and one is positive, another is negative, so the electric field will be sigma upon epsilon naught, right? तो ये जो induced electric field है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं sigma induced divided by epsilon naught. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. और हमने ये भी देखा था कि ये जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है वो किस पे प्रोपोर्शनल, वो किसके बराबर होती है? याद करो, इट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोलराइजेशन डेंसिटी, इफ यू रिमेंबर. अभी हमने पीछे करा है उसको. सिग्मा आई वाज इक्वल टू पी, लिखा है हमने पीछे, रिलेशन देखो. इज इट राइट? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ. तो इसको ई आई विच इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पी को यहां से देखना क्या लिख सकते हैं? पी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ काई मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस एंड दिस गोज, तो यू विल बी हैविंग काई मल्टीप्लाइड बाय ई. टेल मी यस और नो. Yes. यहां तक सबको क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से. अब कुछ नहीं करो, इस ई आई को उठा के यहां से यहां रख दो. ठीक है, रखो. क्या आता है ये ई? मतलब ये ई नेट ही है, याद रहे. ये भी ई नेट है, ये भी ई नेट है. तो अगर हमने इसको यहां से यहां उठा के रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई आई. ई आई की वैल्यू ये है एक्स ई नेट, यही तो आ जाएगा. इसको यहां से इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आओ, तो ई नेट आपका कॉमन आ जाएगा. दिस विल बिकम 1 प्लस ऑफ काई. दिस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, है ना. रेस्ट आई एम राइटिंग हियर. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस ऑफ काई इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट. और ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट को ही हमने कप्पा कहा था. कप्पा मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था. दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ऑफ काई. ये रिलेशन है बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. देखो सर, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. If you have any doubt, please ask. Is it clear to all? Please tell me. क्या हो गया? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहां तक आप पढ़िए, मतलब अब आप खुद से पढ़िए. उसके बाद एक और क्लास, दैट इज द नेक्स्ट क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर. ठीक है, अब हमें इसमें जो पढ़ना है, दैट इज, इसमें जो अब हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ. इसमें हमें पढ़ना है कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमें पढ़ना है इसमें, और अरेंजमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स पढ़ना है हमें, सीरीज एंड पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन होता है. तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना ही, इतना आप पढ़ के रखिए. तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ते हैं. और सर जी, बोलो. कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है बेटा कि उसको अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे ना, तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो अगर मान लो ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो उसके अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भागते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भागते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है, तो अब होता यह कि ये इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है. बट यहाँ पर कंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो ये फील्ड इंड्यूस होती है वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होती है. मतलब इसमें चार्जेस दो सरफेस पे तब तक अरेंज होते रहते हैं
जब तक इसके अंदर की फील्ड इसके बाहर की फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन इंड्यूस ऑन इट टू सरफेसेस, ठीक है। मतलब उसका मेन एम क्या है कि इंटरनल फील्ड को किसके बराबर करे, एक्सटर्नल फील्ड के बराबर करे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चार्जेस दो सरफेस पे इंड्यूस होते रहेंगे। बट डाइलेक्ट्रिक के साथ ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक में एक लिमिट है, तभी तक उसके जो चार्जेस है वो एक दूसरे तरफ भागेंगे, बट अब बियॉन्ड दैट लिमिट उसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता। समझ में आई बात? यस This is purely the property, and this property is basically the difference between the conductor and the dielectric. कि कंडक्टर में इनफाइनाइट अमाउंट तक चार्ज इंड्यूस हो सकता है, मतलब मेन पॉइंट ये कि उसमें तब तक चार्ज इंड्यूस हो सकता है जब तक कंडक्टर के अंदर की फील्ड बाहर की फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। बट डाइलेक्ट्रिक की